Hello students, today we will be learning a concept called as list that we use in Python. Okay, so what do you mean by a list? You all know what do you mean by an array? Array stores similar type of data, right? Array जो है वो क्या करता है, similar type of data store करेगा. List is similar to my array, but the only difference is it will store similar type of data plus it can store different type of data. What do I mean is, let's take a variable a and I am storing an empty list. As you can see, my list is empty. Remember, when you use list, you use square brackets. Okay, we use square brackets for list. Now when I say print my variable a, it is going to give me an empty list. So my list can be empty, 0.1. Again, I'm taking the same variable and I'm storing 1, 2, 3, 4. Here you can see I have taken similar type of data. All my value is in the form of integer. Okay, now let's press enter and see print a. So I have got the output as 1, 2, 3, 4. So list can be empty, 0.1. List can store similar type of data, 0.2. A equals to 1, 3.4, happy, G. I have taken a random value. So here you can see my first value is an integer, second value is in float, third is a string, and the fourth one again is a string, that is a character. So let's print a. Okay, so what is a list? List works similarly like an array, but here your list can be empty. It can store similar type of data or it can store different type of data. Okay, now I have used the word array. What do you mean by an array? When the concept of array clicks to your mind, the other term is index value. Your array is incomplete without your index value. हमारा जो array है उसमें index value होता है and index value start कहाँ से होगा? 0 से, right? Let's take an example. Okay, here I have taken a variable a. Okay, and I am using a list. I have taken value 1, 2, and let's take an character, or in Python we say string, h. Okay, now list is like an array, so list के पास भी खुद का क्या होगा? Index value होगा. ठीक है? Now there are two types of index value: forward indexing and backward indexing. This is my forward indexing जो आपने array में पढ़ा है, and this is my backward indexing. Forward indexing you all know कहाँ से start होता है? 0 से. 0, 1, 2. Okay, now backward indexing कहाँ से start होगा? -1, -2 and -3. Okay, so list एक array के जैसा है, and अगर हमने concept ले लिया array का, तो array के अंदर सबसे important part आता है indexing. यहाँ पे दो type of indexing है, forward indexing और backward indexing. फॉरवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से होती है, n-1 पे जाके एंड होती है. बैकवर्ड इंडेक्सिंग लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगी एंड उसका इंडेक्स वैल्यू क्या होगा? -1. ओके, सो ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो, दिस इज योर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग. दिस इज योर फॉरवर्ड एंड दिस इज योर बैकवर्ड इंडेक्सिंग. होपफुली दिस पार्ट इज क्लियर. नाउ हमने लिस्ट बना लिया है. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज हाउ डू आई एक्सेस द एलिमेंट ऑफ माई लिस्ट. तो इफ यू वांट टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ योर लिस्ट, you have to use index value जो अभी हमने पढ़ा. ठीक है, so how do I access the element of my list using my index value? Let's take an example. Print a. Let's print a first so that you all should know a में क्या data stored है. So in a you have stored different type of data: integer, string, float, etc.
प्रिंट a ऑफ 1. नाउ यहाँ पे फॉरवर्ड इंडेक्सिंग देखते हैं. 0 पे कौन स्टोर्ड है? 1. 1 में कौन स्टोर्ड है? 3.4. 2 में कौन स्टोर्ड है? हैप्पी. एंड 3 में कौन स्टोर्ड है? जी. तो यहाँ पे मैंने क्या कहा? प्रिंट. किसे प्रिंट करना है? ए को, वेरिएबल ए को. लेकिन कौन से इंडेक्स वैल्यू को? इंडेक्स वैल्यू 1 को. तो यहाँ पे देखो ये इंडेक्स वैल्यू 0 है और ये इंडेक्स वैल्यू क्या है? 1. तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 3.4. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. प्रिंट just a second. Okay, print a of index value -3. हमने यहाँ पे क्या कहा? किसे प्रिंट करना है हमें? a को. लेकिन हमने कौन सा इंडेक्स वैल्यू दिया? यहाँ पे हमने बैकवर्ड इंडेक्सिंग दी है. एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है? -1 से. सो g इज माई -1, हैप्पी इज माई -2 एंड 3.4 इज माई -3. सो आउटपुट आया 3.4. ओके, होपफुली दिस कंसेप्ट इज क्लियर. सो यूजिंग योर इंडेक्स वैल्यू हम क्या करते हैं? हमारे लिस्ट के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट part is to know what is your list. What is your list means आपका जो list है वो क्या होता है? वो immutable हो, sorry, your list is mutable. Now what do you mean by list is mutable? If I say your list is mutable, इसका मतलब ये होता है once the value you store in your list can be changed. You can alter, modify or change the value of your list. Let's take an example. Again I am printing my variable a. Okay, now I am writing a of 3 means a के इंडेक्स वैल्यू 3 में हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं. स्टोर, ओके, इट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू. एंटर. नाउ लेट्स चेक हमारे a के इंडेक्स वैल्यू 3 में स्टोर हो रहा है वैल्यू या नहीं. प्रिंट a. एज यू कैन सी इंडेक्स वैल्यू 3 क्या था? ये था 0, 1, 2 और 3. तो g मेरा इंडेक्स वैल्यू 3 था. अभी यहाँ पे देखो 1, 2, 3. 0, 1, 2 वैल्यू इज एग्जैक्टली द सेम. बट मेरा जो इंडेक्स वैल्यू 3 था उसमें एलिमेंट क्या स्टोर था? g. बट यू हैव चेंज द वैल्यू टू स्टोर. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो हमारा लिस्ट होता है, लिस्ट आर म्यूटेबल. वॉट डू यू मीन बाय म्यूटेबल? म्यूटेबल मीन्स you can modify, alter or change the value of your list. Let's take one more example. A 0, 2, 2. Now what have I done here? Here I am saying change the value of A. लेकिन change कहाँ से start होगा? इंडेक्स वैल्यू 0 से. और एंड कहाँ पे होगा? इंडेक्स वैल्यू 2 पे. Always remember if I say 2 it is n-1, that is 1. Means change start होगा 0 से and it will go till 1. Index value 1. Okay? And here I'll be storing string value change. Now let's see print A. As you can see my value have been changed to change, happy, store. But यहाँ पे हमारा जो change है वो अलग अलग terms में आया है. Means your one string have been divided into multiple strings. Okay, hopefully you can see the difference. So what you have to do is you have to always store the value with one index. आप डबल इंडेक्स के साथ वैल्यू को चेंज करेंगे तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी. इफ़ यू ऑल वांट कि आपका पूरा वैल्यू एक साथ स्टोर हो तो वेन एवर यू चेंज और मॉडिफाई योर वैल्यू ऑलवेज गो विद अ सिंगल इंडेक्स वैल्यू. ओके, होपफुली दिस कंसेप्ट इज क्लियर. सो अभी तक हमने क्या किया? अभी तक हमने देखा व्हाट इज अ लिस्ट. लिस्ट इज एन एरे बट इट स्टोर्स डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा.
एरे का कंसेप्ट आया मीन्स द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्सिंग. यू हैव टू टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड इंडेक्सिंग एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग. फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में 0 से वैल्यू स्टार्ट होता है एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग में -1 से वैल्यू स्टार्ट होता है. नेक्स्ट, list are mutable. Mutable means you can change the value of your list, you can modify your list. Okay, then if you want to access the element from your list, you have to use what? You have to use your index value. It can be forward or backward. Okay, let's proceed further. Now we have created a list. What if I want to delete my list or I want to delete the element of my list? So हम क्या करेंगे? लिस्ट में there are 3 terms. पहला है remove, सेकेंड है del that is delete and थर्ड है pop. Okay, एक पहले हम देखेंगे remove. What is remove? Now first I will print my variable a, or let's take a different variable. I am taking a variable b and I am assigning value as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. Okay, I have stored similar type of data to my list. Let's print b, my variable b, and the output is 1 to 9. So we have 3 functions: remove, delete and pop. अब remove क्या करेगा? मैंने यहाँ लिखा b dot remove. रिमेंबर, जब हम रिमूव फंक्शन यूज करते हैं हम उसके साथ वैल्यू को स्पेसिफाई करते हैं. वैल्यू मीन्स हम इंडेक्स वैल्यू नहीं देते, हमने जो ये एलिमेंट स्टोर किया है ना हम उन्हें स्पेसिफाई करते हैं. सो योर आई एम राइटिंग 5. मेरे लिस्ट में से किसको रिमूव कर दो? 5 को रिमूव कर दो. नाउ लेट्स प्रिंट माई वेरिएबल अगेन, दैट इज माई लिस्ट. योर यू कैन सी 4 के बाद 6 आया, मतलब मेरा जो 5 है वो क्या हो गया है? डिलीट हो गया है. बट वॉट इफ मैंने लिखा b डॉट रिमूव 30 एंड यू ऑल नो 30 मेरे लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है. सो लेट्स सी हमें क्या आउटपुट आता है. लिस्ट डॉट रिमूव x मतलब आपका एलिमेंट, x नॉट इन द लिस्ट. ऐसा कोई भी हमें डेटा लिस्ट के अंदर नहीं मिला. ओके, सो फर्स्ट ऑपरेशन इज अ रिमूव. ऑलवेज रिमेंबर विद रिमूव हम क्या देते हैं? हम एलिमेंट देते हैं या डेटा देते हैं, हम इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते हैं. नेक्स्ट, सेकेंड ऑप्शन है डिलीट या डेल, जिसे हम कीवर्ड देते हैं डेल. डेल वेरिएबल b. रिमेंबर व्हेन यू आर यूजिंग द डिलीट फंक्शन यू यूज और डिलीट टर्म यू गिव द इंडेक्स वैल्यू. अब यहाँ पे मैंने इंडेक्स वैल्यू दिया है 0. लेट्स सी आउटपुट क्या आता है. ओके सॉरी, whenever you specify index value आप स्क्वायर ब्रैकेट देते हैं, मैंने यहाँ पे राउंड ब्रैकेट दिया है. लेट्स चेंज इट, del b of index value 0. now let's print my b. before printing let me explain you all the concept. अभी यहाँ पे this is my current b, latest b, जहाँ पे हमने 5 को निकाल दिया है. यहाँ पे 0 इंडेक्स वैल्यू मीन्स 0 इंडेक्स वैल्यू में कौन सी वैल्यू स्टोर्ड है? 1. सो अकॉर्डिंग टू आवर थ्योरी 1 एलिमिनेट हो जाना चाहिए एंड 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 should be my output. Let's check. Okay. So delete के साथ हम क्या करते हैं? इंडेक्स वैल्यू लेते हैं. एंड रिमूव के साथ हम क्या लेते हैं? एलिमेंट लेते हैं. Let's take one more example. Delete b. Here I am specifying the index value as 9. एंड अगर आप देखोगे हमारे पास इंडेक्स वैल्यू 9 नहीं है. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. वी हैव ओनली इंडेक्स वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 6. सो लेट्स सी अभी आउटपुट क्या आता है. मैंने क्या कहा है? b में से इंडेक्स वैल्यू 9 को डिलीट करो. लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज. हमारे पास ऐसी कोई भी इंडेक्स वैल्यू नहीं है. ओके, सो रिमूव से हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं. डिलीट फंक्शन से हम किसे डिलीट करते हैं? इंडेक्स वैल्यू को डिलीट करते हैं. थर्ड फंक्शन या थर्ड ऑपरेटर है पॉप. पॉप नाम से मालूम पड़ रहा है क्या करेगा? एलिमेंट को पॉप करेगा, लिस्ट के बाहर थ्रो करेगा. नाउ पॉप में देयर आर 2 टर्म्स, b डॉट पॉप इंडेक्स वैल्यू 4. यहाँ पे मैंने क्या किया? b में हमने कौन से फंक्शन को यूज किया? पॉप फंक्शन को. एंड किसको पॉप करेंगे? किसको बाहर निकालेंगे? इंडेक्स वैल्यू 4 को. लेट्स चेक माई इंडेक्स वैल्यू 4 इज 0, 1, 2, 3, 4. मीन्स 7 को वो क्या करेगा? लिस्ट में से पॉप कर देगा, बाहर निकाल देगा. एज यू कैन सी
7 बाहर आ गया. अब प्रिंट करो b वेरिएबल को या लिस्ट को. So this is your new list where your value is 2, 3, 4, 6, 8, 9. Okay? Remove के साथ value, delete के साथ index value, pop के साथ भी index value. But if I just write b dot pop और मैंने कोई भी index value specify नहीं किया, so यहाँ पे by default कौन सी value pop होगी? End value. जो end index value होगी ना वो बाहर आ जाएगी. Let's see. End means अकॉर्डिंग टू आर लिस्ट 9, तो 9 एलिमेंट क्या हो जाएगा? पॉप हो जाएगा, लिस्ट के बाहर आ जाएगा. लेट्स चेक. ओके, सो अगेन लेट्स प्रिंट माय वेरिएबल और माय लिस्ट. सो दिस इज माय करंट और लेटेस्ट लिस्ट जिसमें से 9 एलिमेंट बाहर आ गया है. दैट इज माय लास्ट एलिमेंट. व्हेन यू डोंट स्पेसिफाई द इंडेक्स वैल्यू विद माय पॉप फंक्शन, बाय डिफॉल्ट इट विल थ्रो आउट द लास्ट एलिमेंट. ओके, सो दिस वाज द deleting element from your list. Now there are some built-in functions, methods and operators in list. Let's quickly go through that. First is your membership operator. Now what do you mean by membership operator? Membership operator में there are two operators, in and not in. अभी in क्या कहता है? If the element is present, it will be true. Let's take an example. Here I am writing 4 in B. ये क्या चेक करेगा? 4 B में प्रेजेंट है या नहीं. अगर प्रेजेंट है तो आउटपुट आएगा ट्रू. इफ द एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट द आउटपुट विल बी फॉल्स. आउटपुट आ गया ट्रू. नाउ K in B, it will check for data K in my list B. So as you can see, we don't have K in my list B, so output should be false. Okay, now 8 in B. आप लोग बताइए आंसर क्या होगा? चेक कीजिए मेरा एलिमेंट एलिमेंट 8 B में प्रेजेंट है या नहीं. इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट, द इन ऑपरेटर विल गिव यू द आउटपुट एज ट्रू. ओके, सो मेंबरशिप में दो ऑपरेटर्स होते हैं, इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर. तो हमने अभी इन तो कर लिया. इफ द एलिमेंट इज प्रेजेंट, द आउटपुट विल बी ट्रू. नाउ 8 नॉट इन बी. यहाँ पे हमने क्या किया? 8 वैल्यू 8 नॉट इन बी, मतलब ये वैल्यू बी में नहीं है. आप लोग चेक कीजिए है या नहीं. एलिमेंट 8 प्रेजेंट है तो आउटपुट यहाँ पे क्या आना चाहिए? फॉल्स. नाउ 10 नॉट इन बी, वो चेक करेगा 10 बी में नहीं है ना, वो ऐसे चेक करेगा and the output will be true. If the element not found, the output will be true. In क्या बोलता है? In element then true and or else false. ठीक है, इन बोलता है अगर एलिमेंट फाउंड है तो मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, लेकिन अगर एलिमेंट नहीं मिला तो मैं क्या रिटर्न करूंगा? फॉल्स. नॉट इन क्या कहता है? एलिमेंट नॉट फाउंड तो ट्रू और एल्स फॉल्स. ओके, so this is your first operator, that is in and not in operator. Okay, let's proceed further. Then you have some built-in functions in your list. Let's do it quickly. Here I am taking a variable a and I am making it as a tuple 1, 2, 3. Okay, I am making it as a tuple. What if I write list a? ये फंक्शन क्या करेगा? लिस्ट इज अ फंक्शन. ये फंक्शन मेरे ए को किस में कन्वर्ट कर देगा? लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा. ओके, यहां तक क्लियर हुआ? हियर आई एम टेकिंग अ वेरिएबल p इक्वल्स टू 1, 2, l, f. नो, लेट्स टेक अ डेसिमल वैल्यू 2.5. ओके, मैंने एक नया वेरिएबल लिया है टू गो थ्रू द ऑल द मेथड्स एंड फंक्शंस यूज्ड इन योर
लिस्ट. अभी पहला हमने लिस्ट फंक्शन देखा. लिस्ट क्या करेगा, किसी भी स्ट्रिंग ट्यूपल को किस में कन्वर्ट कर देगा, लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, लिस्ट फंक्शन. नेक्स्ट इज योर लेंथ ऑफ पी, माई लेंथ फंक्शन. अभी यहाँ पे देखिए कितना लेंथ है, 1 2 3 4. 4 वैल्यू स्टोर्ड है, मतलब मेरे p का लेंथ हुआ 4. सो द आउटपुट शुड बी 4. ओके. नेक्स्ट आई एम यूजिंग द मैक्स फंक्शन. मैक्स ऑफ p, be very careful when you see the output. Error. Why? It cannot compare string and integer. Max function cannot compare string and integer. So to learn max and minimum, I'll be taking a random variable and storing a simple value. मैंने randomly कुछ भी integer value store किया है. Now let's see the max function. Max of a. As you all can see, the maximum value of a is what? 90. So my max function should return me the maximum value of list a, that is 90. Minimum of a. Minimum value will return the minimum of my list, and the minimum value of my list is 1. Okay. So let's proceed further. Here I'll be using variable a. Let's sort my list. What do you mean by sorting? Sorting means giving the data or output in the ascending form. Ascending means 1 to 10, a to z. Okay, lower to the maximum, minimum to my maximum value. Let's take an example. a dot sort, हम किसके ऊपर sort function अप्लाई कर रहे हैं, a पे. एंड a में वैल्यू क्या है, 1 2 3 6 90 एंड 48. a dot sort. लेट्स प्रिंट a एंड आउटपुट में क्या हो जाएगा, 1 2 3 6 48 देन 90. ओके. नेक्स्ट a dot reverse. The reverse function will give me value starting from the backward indexing, that is -1, -2, -3, -4, -5 and -6. Means my list will start from 90 and end at 1. Print a. Okay. Next, a dot index 4. इसका क्या आउटपुट आएगा, हमने a में कौन सा फंक्शन यूज किया, इंडेक्स फंक्शन. इंडेक्स फंक्शन विल गिव मी द वैल्यू स्टोर्ड एट इंडेक्स वैल्यू 4. सो लेट्स सी द आउटपुट. okay, I'm sorry, 4 is not in the list. So let's take another example. A dot index 3. It will give me the value of index. It will give me the index value of element 3. So as you can see, 0 1. Okay, so the current list is this one, 0 1 2 3, because we have performed the reverse function to my list. Okay, let's take one more example. A dot index 1. If your value is not present in your list, it will give the output as 4 is not in the list. Okay, so here I want to know the index value of element 1, and you all can see the element 1 is at the end, so the index value will be 0 1 2 3 4 5. So the output should be 5. Okay, next is your count function. A dot count 6. It will count for the element 6 appear to in my list. Okay, so here you can see 6 have been appeared only one time, so the output should be 1. But I am making a small change to my program. I am making
I'm taking another variable and I'm storing values in a repetitive form. Just to show you all the example of the function count, b dot count, and here I want to see the count of my value 2. मुझे ये देखना है कि मेरा जो वैल्यू 2 है वो मेरे लिस्ट में कितने बार अपियर हुआ है. एज यू कैन सी 1 2. सो आउटपुट क्या आना चाहिए 2. ओके, सो काउंट फंक्शन क्या रिटर्न करता है? काउंट फंक्शन ये रिटर्न करता है कि हमारे लिस्ट में वो एलिमेंट कितने बार आया है. I want to take another example just to show you all the difference between integer and string. Okay. So here I have taken 4 data, that is 4 values, h, him, and then h. Okay. Here I am saying c dot count h. So according to you all कितना आउटपुट आना चाहिए h का? 1 2 3 4 5 है ना. अकॉर्डिंग टू अस आउटपुट कितना आना चाहिए 5. नाउ लेट्स सी द आउटपुट एंड देन यू विल नो द डिफरेंस. Name h is not defined. Okay, why is this error have appeared? The reason is I have not specified my h to my string. ओके अभी देखते हैं. हमारे हिसाब से आउटपुट 5 आना चाहिए बट आउटपुट क्या आया 2. वाई? बिकॉज दिस इज नॉट h. ये एक स्ट्रिंग के अंदर का एलिमेंट है. सिंगल सिर्फ h कितने बार रिपीट हुआ है? 1 2. आई विल टेक वन मोर एग्जाम्पल. c डॉट काउंट. अभी हमारे हिसाब से हिम कितने बार आया है? 1 और 2 है ना. लेट्स सी आउटपुट क्या आया 1. सो आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया. एक स्ट्रिंग के अंदर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो काउंट नहीं होगा. सिंगल अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो सिर्फ उसे ही हमारा जो काउंट फंक्शन है वो काउंट करेगा. ओके, सो अभी तक हमने क्या देखा? लेंथ फंक्शन, लिस्ट फंक्शन, मैक्सिमम, मिनिमम, रिवर्स. रिवर्स हमारे लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेगा. सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में हमारे लिस्ट को प्रिंट करेगा. एंड काउंट will specify the count of element present in my list. And we have done one more index. Index क्या करेगा? Index हमें specific value का index value return करेगा. Specific element का index value return करेगा. Okay? Here I say next function is हम A को clear करते हैं. पहले हम print करेंगे. A में हमने क्या store किया है वो देखते हैं. Print A. Okay? अब यहाँ पे हम करेंगे A dot clear. मैंने मेरे ए के लिस्ट को क्या कर दिया? क्लियर कर दिया, साफ कर दिया. नाउ व्हेन आई प्रिंट माई ए आई शुड गेट अ एम्प्टी लिस्ट. रिमेंबर आई हैव क्लियर द डेटा ऑफ माई लिस्ट, आई हैव नॉट डिलीटेड माई लिस्ट. ओके, सो हमें एक एम्प्टी लिस्ट मिल गया जिसके अंदर कोई भी डेटा प्रेजेंट नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज योर इंसर्ट. इंसर्ट क्या करेगा? स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू में डेटा को स्टोर करेगा. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. Here I'll be using variable b, so print b. So this is my list b. Okay, variable b is containing this list. Here I write b dot insert. हम कहाँ पे इंसर्ट करना चाहते हैं? हमको वो इंडेक्स वैल्यू देना है. मैंने इंडेक्स वैल्यू दिया 4. इंडेक्स वैल्यू 4 पे आई वॉन्ट टू स्टोर h. ओके, सी 0 1 2 3 4 मीन्स मुझे 5 के पोजीशन पे किसे स्टोर करना है? h को स्टोर करना है. बट रिमेंबर 5 विल नॉट डिलीट, 5 विल शिफ्ट टू द नेक्स्ट पोजीशन. जो मेरा 5 डेटा है, ये वाला जो डेटा है वो डिलीट नहीं होगा. वो क्या होगा? एक पोजीशन आगे शिफ्ट हो जाएगा. एंड उस पोजीशन पे क्या स्टोर होना चाहिए? h. लेट्स सी प्रिंट b. एज यू कैन सी 5 के पोजीशन पे क्या आ गया? h. एंड मेरा जो 5 है वो डिलीट नहीं हुआ, वो आगे शिफ्ट हो गया. सो इंसर्ट फंक्शन डिमांड्स 2 वैल्यू. फर्स्ट इज योर इंडेक्स वैल्यू एंड सेकेंड इज योर वैल्यू टू बी इंसर्टेड.